شاعربانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ شاعربانی کی ترتیب کی کتاب خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے لطف کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پا کر، تاکہ ہم تجھ سے قابل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ ان دو حکموں پر تمام انبیاء کی صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ عزیزو، آج ہم پھر اس لیے خدا کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ آمد کے تیسرے اتوار میں خداوند کی تعظیم کریں، اس کی مدح سرائی کریں اور تیاری کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس میں ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خداوند کا فضل مانگیں تاکہ توبہ ایمان سے اس کے نزدیک آ سکے۔ تھوڑی دیر خاموشی میں رہیں گے، اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں گے، گزرے دنوں کے لیے، گزرے ہفتوں کے لیے، گزرے سال کے لیے خدا کا شکر ادا کریں گے اور اپنی اپنی خاندانی زندگی پر غور کریں۔ آئے ہم سب مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور کہیں آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے دوست کے خلاف گناہ کیا ہے، دور کی بجائے تاریکی میں چلے تھے، ہم نے اسی کا نام کیا ہے، اتنا راستے سے باہر نکلے، ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، جس مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، ہم تیرے قدس کے ذریعے ہمیں پاک کر ہمارے زمین کو بنا اور ہمیں دوسروں کی قصور معاف کرنے کی توفیق دے اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے منت اٹھانے والے اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح اس گناہگار کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مدد خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔
وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے، ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے، اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آئے ہم خداوند کی حمد و تعریف کریں، خداوند کا شکر ادا کریں۔ گیت نمبر 190 گائیں، خوشی سے گائے گا، چہرے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کے لیے خوبصورت کارپٹ بچ گیا، تالیاں بجائیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہماری مدد۔ آہا یسوع آیا زمین پر، خوشی کرتے ہیں سارے آسمان 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 آسمان۔ گیت نمبر 190 190۔ تمام ان عزیزوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں جو بیرون ملک ہیں، جو بچے تعلیم علم حاصل کرنے کے لیے گئے، جن گھروں میں خوشیاں ہیں، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، جن لوگوں کو خدا
نے برکت دی ہے، جن لوگوں کو خدا نے صحت و تندرستی دی ہے۔ اخیہ عرفان کے لیے خاص شکر کرتے ہیں خدا کا کہ حادثے میں خدا سے اپنی پناہ میں رکھا، آج وہ خدا ان کے گھر میں شکر گزاری کے لیے آیا ہے۔ اس کے والدین کے لیے بھی دعا کیا جائے، آئے ہم شکر گزاری کریں، کوئی بھی دعا کر سکتا ہے۔ تو بلائے تیری شفقت ابدی اور تیری وفاداری کچھ تک کچھ رہتی ہے، تیرے خدا نے لبریز ہیں، تیرے پاس کس چیز کی کمی نہیں ہے، تو سب کچھ کرنے کے قادر باپ، ہمارا پیدا کرنے والا رزق سانپ ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو اس لائق ہے تجھے سجدہ کیا جائے، تجھ سے مانگا جائے، تیرا شکر جائے جائے۔ اس وقت کے سامنے پیش ہوتے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں، میں بولو حضور ماں شکر جاتے ہیں زندگی کے لیے، زندگی کی تمام بڑی برکات کے لیے جو انہیں بھی مانگے بغیر رکھی، سب سے بڑھ کر انہیں اپنا زندہ کلام بخشا، اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ باپ جلال کلام گزرے وقتوں میں انہیں ہماری فاضلی کے وعدے کی، اس کرسمس کے سیزن کے لیے تیرا شکر جاتے ہیں۔ تیرے لوگ کرسمس کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، خدا ان کو خدا بڑی برکت دینا، خدا ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا، جتنے بھی کرسمس کے حوالے سے پروگرام بنائے جا رہے ہیں ان کے تمام پروگرام میں ان کے شامل ہاتھ ہونا، خدا تو ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم حقیقی طور پر تیرے بیٹے کے جنم دن کو منائیں اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی بس کریں، تیرے نام کی عزت اور جلال دیں۔ جلال خدا جتنی مناجاتیں سفارشات تیرے سامنے رکھی گئی ہیں ان کو سننا اور قبول کرنا، جتنے لوگ بیرون ملک ہیں خدا ان کو بھی خوشیاں بخشنا، جتنے لوگ اس وقت تیرے گھر میں موجود ہیں ایک ایک کو تو اپنی برکتوں سے مالا مال کرنا۔ آپ جلال خدا پوری دنیا میں جہاں کہیں آج تیرے نام سے تیرے مسیحی لوگ تیری عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اپنا فضل والا ہاتھ بڑھانا، ان کو ہر طرح کی دہشت گردی سے بچانا، خدا انہیں لوگوں پہ اپنا فضل والا ہاتھ بڑھائے رکھنا، ہر طرح کی وباؤں بیماریوں سے بچانا، کوئی وبا بیماری خدا تیرے لوگوں کے سامنے کرسمس منانے میں رکاوٹ نہ بنے۔ خدا تو آج کا جو تیرا زندہ کلام پیش کیا جائے تو ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، ہمیں بڑی برکت دینا، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔
और जो लोग क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए खानदानों में आ रहे हैं उनके लिए, अपनी बहन अंजुम के लिए सलामती के साथ वापस लौटिए। आप सबके लिए, अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सलामती के साथ खुदा के घर में हैं, खुदा उनका शुक्र कीजिए कि खुदा ने हम सब पर रहम किया है, हमें सेहत नसीब है ताकि आमद का तीसरा इतवार हम खुशी के साथ मना सकें और इसकी ताज़ीम कर सकें। आज के दिन के लिए खास दुआ करें अपने शहर के लिए, क्योंकि आज तो अपोजिशन जमायतें हैं वो जलसा करना चाहती हैं, गवर्नमेंट नहीं करना चाहती कि वो करे, तो खुदा तसादम से, लड़ाई से, कत्ल-ओ-गारत से, मुश्किलात से बचाकर महफूज रखें हम सब, क्योंकि इस शहर की सलामती में हमारी सलामती है, इस शहर की सलामती में, इसलिए लाहौर शहर के लिए दुआ करें। कोई भी दुआ कर सकता है, अपना मुंह खोल तो मैं इस काबिल तो ना थे, लेकिन तूने उस काबिल समझा जिंदगी ज़मीन पर रखा है। खुदा इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा बहुत से हमसे बेहतर थे जो इस जहाने पानी से कूच कर गए खुदा, और इस दिन को ना देख पाए। ये तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत और तेरी शफकत है कि तूने खुदा हमें ज़िंदगी ज़मीन पर रखा हुआ है। खुदा जिस तरह के कुछ दिन के बाद क्रिसमस है खुदा, अपना गहरा फजल हम पर है खुदा बढ़ाए रखना है खुदा, जो मुश्किल में है, मुसीबत में है, परेशानी में है खुदा, सबकी परेशानियों को दूर करे खुदा, और हम पर अपने रहम करम की निगाह कर जिस तरह क्या खुदा आज अपोजिशन जमाते हैं खुदा, जो भी अफरा तफरी करना चाहती हैं खुदा इस मुल्क पर और हम पर है खुदा, अपना फजल बनाए रखे खुदा, हम पर अपने फरिश्तों की गाड़ लगा दे खुदा, हर इंसान को हर एक फर्क को खुदा अपने गहरे फजल से महफूज रखना है खुदा। दुआ करता हूँ मैं खुदा ज़ात तमाम गुनाहों से पाक है खुदा, जितने भी यहाँ सर झुके हैं खुदा, जिनकी जो परेशानी है खुदा हम तो नहीं जानते, लेकिन तो हमारे है खुदा हर एक चीज़ से वाकिफ़ है, उनकी परेशानियों को दूर कर, दुखों को दूर करे खुदा, जो बीमार हैं खुदा उन्हें शिफा करे खुदा, और जो तंदुरुस्त हुए हैं खुदा उनके लिए तेरी शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि खुदा तो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि तौबा तक नौबत पहुँचे खुदा, जो मांगा है खुदा इस ईमान के साथ क्या खुदा पाया मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम। पुरानी बाइबल में सफ़ा नंबर 709 है। पुरानी बाइबल जो आपके सामने पड़ी है सफ़ा नंबर 709, यशायाह नबी का सहीफा चैप्टर 61 61 बाब, सब निकालें। अगर आप में से कोई इस तलावत इस हिस्से की तलावत करना चाहता है अपना हाथ दिखाएं। चलो अब इस साइड से आप खड़ा करें, यहाँ दो मेंबर हो गए, इस साइड से जिसने कभी नहीं पढ़ा पढ़ा करें, जिसने कभी नहीं पढ़ा वो हाथ दिखाए। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जरूर मुझे हफ्ते के किसी भी दिन पूछ लिया करें कि कौन सा हवाला है। टेलीविजन नजर आपने आप पहले खड़ा किया, आप पढ़ ले। फिर यशायाह नबी का सहीफा चैप्टर 61 वर्स 1 to 11 पहली आयत से 11वीं आयत। फिर हम ज़बूर 85 की 3 आयतें गाएंगे। मैं गल खुदा नहीं सुनागा जद करेगा कलाम। फिर हम मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान सुनेंगे। पहला बाब 19वीं आयत से 28वीं आयत तक। पुरानी बाइबल में सफ़ा नंबर 81 81 और नई में 127। जिनके हाथ में नई बाइबल है सफ़ा नंबर 127, और जिनके हाथ में पुरानी बाइबल है सफ़ा नंबर 81 81। यूहन्ना की इंजील
पहला बाब 19 से 28वीं आयत तक। दोबारा दोनों हवाले दोहराना चाहता हूँ। आज का पहला विद यशायाह नबी का सहीफा चैप्टर 61 61वां, नई बाइबल में सफा नंबर 709 909 और पुरानी में 709। आज का दूसरा विद मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान पहला बाब 19 से 28वीं आयत। कौन पढ़ना चाहता है? ठीक है, आप पढ़े बेटा। अभी नहीं, अभी मैं आपको बुलाऊंगा, अपने इधर आके खड़े हो, ठीक है? पढ़ना, शाबाश। मेरे हाथ में शादी की पुकारें हैं, चंद एक जरूरी इश्तिहारात भी हैं। पुकार दी जाती है कि मिस मरियम कैनथ सर्दी की वजह से बचाया गया ताकि आप जूतियां बाहर उतार के आए। अब तो दिल ही नहीं करेगा कि जूतियां पहन के अंदर आए, है ना? सब वादा करते हैं भाई हाथ खड़ा करें जरा, क्योंकि कुछ नाराज होते हैं बाहर के, जी आपने जूती नहीं उतारनी। अब तो आपका दिल चाहेगा कि जूती उतारें, इसलिए कि खूबसूरत कारपेट है। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्वायर को भी नया कारपेट नीचे डाल के दिया। अब मुझे एहसास ऊपर वाला जो गैलरी है वहाँ के लिए हो रहा है। कुछ न कुछ हम इनके इंतज़ाम करेंगे इनके लिए, ताकि वो भी आसानी के साथ सर्दियों में वहाँ पर बैठकर इबादत में शरीक हो सके। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी मदद करते हैं, तावन करते हैं। जब भी कोई रिक्वेस्ट की है, मिन्नत की है, दरख्वास्त की है, आपने हमारी दरख्वास्त को खुशी के साथ कबूल की। ये सारे काम इसी तरह से हुए हैं। रिकॉर्डर, रनर, ये करीब जितनी चीज़ें ये आपकी हैं, आपने दी हुई हैं। किसके लिए दी हैं? ऊपर वाले के लिए दी हैं, जो मुझे और आपको देता है। तो फिर दिया करो, तुम्हें भी कभी नहीं आने देता हूँ, कभी नहीं आने देता। इसलिए हमने पिछले संडे जो हदिया इकट्ठा किया था, उसमें से आज हम अपनी बुजुर्ग उन ख़वातीन के लिए जो विडो बुजुर्ग हैं, बेवा हैं, हम उनकी खिदमत करना चाहते हैं। सो चर्च के बाद बराए मेहरबानी वो ज़रूर यहाँ रहें, मिलें। तो पीछे सेक्रेटरी साहब बैठे, ज़रा सेक्रेटरी साहब ज़रा खड़े हो जाएं ताकि आपको लोग देख सकें। ये सेक्रेटरी साहब, वैसे तो आपको पता चल जाता है, जब वो बोल रहा होता था आप ये समझा कर सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं, ठीक है? तो हम इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये सारे काम जो नीचे कारपेट बिछा, थैंक यू। रात तक हम परसों रात नौजवान जो साथ थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मिलकर हमने ये सारा काम किया, जितने बच्चे से बाहर निकाले थे। फिर तरतीब लगानी बड़ी मुश्किल है। एजाज में कारकर साहब जो है ना, उन्हें पता है कि कितने फुट पे एक बेंच रखना है, ठीक है? हर खिदमत फ़र्क है और हर शख्स को खुदा ने दी हुई है, और जो करता है ना खिदमत, फिर खुदा उन्हें बरकतें भी देता है। और जो रुकावट डालते हैं खिदमत में, खुदा कलाम में लिखा है, जो रुकावट डालता है खुदा उनका घर ढा देता है। क्या कर देता है? इसलिए आप पुश किया करें आगे बढ़ने के लिए, पुश को नहीं किया करें, ताकि ये काम आगे बढ़े, तरक्की करें और लोग बरकत पाएँ। जिन खानदानों को खुदा ने बरकतें दी हैं पिछले हफ्तों में, पिछले महीनों में, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। हमारी बहन अंजम जावेद ज़रा खड़ी हो जी, ज़रा थोड़ी देर के लिए मास्क उतार लें, इनको तालियां बजा के वेलकम करें। थैंक यू। आज कैंडल आपसे हम शमा रोशन कराएंगे, ठीक है? बैठे तशरीफ रखें, इन्हें और जिन लोगों को खुदा ने औलाद जैसी नेमतें दी हैं, शकील यहाँ बैठा है, उन्हें खुदा ने बेटी जैसी नेमत दी है, और लोग हैं जिन्हें खुदा ने औलाद जैसी नेमत दी है, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। जिनके बच्चों की शादियाँ हुई हैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं। जिन बच्चों की शादियाँ होने वाली हैं उन खानदानों को भी दुआ में भी याद करते हैं और आप सबको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और जो हमारे इन दिनों कमज़ोरी की हालत में हैं, हम उनके लिए ख़ास दुआ करते हैं, खुदा उन पर रहम करे। ख़ास तौर पर हम अपने भाई नई बरकत के लिए कि खुदा ने सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, वो इलाज के लिए कोयटा से यहाँ आए हुए हैं, हम उनके घराने के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मास्टर विलियम जेम्स के लिए, भाई अर्नेस्ट जॉन के लिए, महमूद के लिए, और कितने लोग हैं जो आज चर्च में नहीं आ सके कमज़ोरी के सबब से। अखिया इरफान, हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इस जवान का हादसा हुआ, बहुत ज़्यादा चोट से लगी, आज वो क्वायर में बैठा हुआ है, इसके लिए भी तालियां बजाएं कि खुदा ने सेहत दी है।
ہمایوں کے لیے بڑی دیر میں بعد آیا, ہماری بیل نہیں بج رہی, آپ نے ہماری بیل کی جو لیئر ہے وہ تار ہے آج ٹھیک کرنی ہے, اور اوپر جو لائٹ ہماری نہیں جلتی اس کا کام آپ نے کرنا ہے. ہمایوں کے لیے ایڈوانس بجا دیں تاکہ یہ کرے کام, کیونکہ کچھ کام ہے جو میں نہیں کر سکتا, کچھ کام ہے جو میں نہیں کر سکتا وہ دوسرے کرتے ہیں, اور کچھ کام ہے جو میں کر سکتا ہوں لیکن دوسرا شخص نہیں کر سکتا. اس لیے ہمایوں کے لیے, آپ سب کے لیے, سارے خاندانوں کے لیے خوشیاں بھی ہیں تو کچھ مجبوریاں بھی ہیں ہماری اپنی ان دنوں میں کرونا کی وجہ سے. اس لیے ہم تھوڑا کچھ ایسے پروگرام ہیں جو نہیں کر سکتے گورنمنٹ کی وجہ سے بھی اور اپنی وجہ سے بھی, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی شخص بیمار ہو. کچھ خاندانوں میں غمگینی آئی ہے, ان کے لیے بھی ہم تسلی کی دعا کرتے ہیں. سلطنت نے آپ سب کے لیے اسلام بھیجی ہے, کیونکہ رات کو اس کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو ابھی تک وہ کسی چرچ میں نہیں گئی عبادت کے لیے, آج ہو جائے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں جب کوئی شخص جاتا ہے تو 14 دن تو وہ قید رہتا ہے نا, ایک کمرے میں رہتا ہے, تو اس لیے وہ آپ سب کو یاد کرتی ہیں, اپنے چرچ کو بڑا مس کرتی ہیں, اور آپ سب کے لیے دعا کرتی ہیں کہ خدا آپ سب کو صحت تندرستی دے. اور ہماری یہ دعا ہے جتنے بچے باہر تعلیم اور علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, خدا انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے. چرچ کی گلی بڑی خوبصورت ہوتی ہے ہر سال, ہے نا, یہ ہماری گلی ہے چرچ والوں کی, ہے نا, اس کا نام بھی چرچ روڈ ہے. آج 2 بچے باہر بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, آپ کون کو 100 روپیہ دیں یا 200 روپے دیں چرچ کی گلی سجانے کے لیے. یہ کام ہم نے کرنا ہے, اس سے کرونا کا خطرہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. گلی ہم نے سجانی ہے خوبصورت طریقے کے ساتھ. کون کون کھڑا ہوگا بیٹھے گا وہاں, آپ ذرا آتے ہیں. ہرون کون بیٹھے گا, ہرون ہے, ایک اور اپنے ساتھ کو ساتھی بٹھائے. یہ دونوں بچے باہر بیٹھیں گے بڑے اچھے طریقے سے, یار چیئر پہ بیٹھنا, کرسی پہ, ٹھیک ہے. تو آپ کی ہم مدد کریں گے. سب سے پہلے میں اسے پیسے دوں گا گلی کو سجانے کے لیے, میں دوں گا, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے بھی کریں تاکہ ہماری گلی خوبصورت ہو, لوگوں میں گواہی ہو کہ کرسمس کے دن ہے. اس لیے آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے, آپ ضرور ان نوجوانوں کی محنت بڑی کرتے ہیں. جوان تنگ بھی کرتے ہیں. جب کام ہو رہا تھا نا, کچھ کا دل کرتا تھا جلیبیاں کھانے کو, کچھ کا فرق چیزیں کھانے کو, تو ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم ان کی خدمت بھی کرتے ہیں اور یہ ہماری بڑی خدمت کرتے ہیں اور ہماری بات مانتے ہیں. یہ آپ کے بچے ہیں, ہمارے بچے ہیں. کارپیٹ بچھ گیا لیکن اس کے لیے, اس کی صفائی کے لیے ویکیوم مشین کی ضرورت ہے جو اس دور کی ہو, میرے دور کی نہیں, پرانے دور کی نہیں. ہم اس خاندان کے لیے خدا کا شکر, انہوں نے مجھے منع کیا کہ ہمارا نام نہیں لینا. ہم دعا کرتے ہیں خدا اس گھرانے کو ڈھیروں خوشیاں دے اور ان کے بچوں کو سرفرازی دے. کارپیٹ آنے سے پہلے وہ ویکیوم مشین ہمیں دے گئے تھے. تالیاں مجھے اس گھرانے کو. آپ سب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. کبھی کوئی مشورہ دینا ہوتا آپ مجھے ضرور دیا کریں کہ پادری صاحب یہ کام اگر اس طرح کریں تو زیادہ اچھا ہے, میں خوشی سے قبول کروں گا. میری کوئی غلطی بھی نکالنا چاہتے تو نکالا کریں, میرے پاس ضرور آیا کریں, مجھے میرے ساتھ بیٹھا کریں, مجھے بتایا کریں ضرور, لیکن خوش رہا کریں, ٹھیک ہے. جو بھی بات کرنی ہے کھری کھری کیا کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو درست کر سکیں. کوئی بھی شخص قابل نہیں, ٹھیک ہے. کوائر کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرے, نئے کارپیٹ پہ کھڑے ہیں, جوتیاں نہیں لانی ہے بندہ, ٹھیک ہے. اس لیے ہم ان کی محنت کے لیے بھی. اب اگلے اتوار کے لیے کیرولز ہی تیار کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. کرسمس کے گیت ہونے چاہیے اس مہینے میں, اور میں میسج میں بتاؤں گا کہ ہم کتنی عیدیں مناتے ہیں اور آج کی کون سی عید ہے اور ان دنوں میں کیا ہے. خدا آپ سب کو برکت دے, صحت و تندرستی دے. گزرے دنوں میں انسانی حقوق کا دن منایا گیا. ہم سب کے جو حقوق ہیں نا ان سے واقف رہے. اپنی جوان بیٹیوں کو, خواہ وہ 12 سال کی ہے 10 سال کی ہے, کسی کے گھر میں نہ چھوڑیں. یہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں. ڈیفنس کے علاقے میں کوڑے, ہمارا چرچ ہے, وہاں پہ 2 لڑکیاں غیر مسیحی گھر میں تھیں, انہی کے گھر میں رہتی تھی, کام کرتی تھی. پتہ نہیں, میں یہاں پہ کھڑا ہوں, میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب وہ لینے کے لیے والدین گئے ہیں کہ کرسمس کی شاپنگ کر رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا, انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اب یہ مسیحی نہیں ہے.
गलती किसकी है? वालिदैन की है, मेरी और आपकी गलती है। फिर आप बाद में पता ही नहीं चला जी, मत्ती मारी गई है। मत वजह तो पहले अकल से काम करें। मैं और आप अशरफुल मखलूकात हैं, शुतुरमुर्ग की तरह बेरहम ना बने अपने बच्चों के लिए, बच्चों का ख्याल रखें। अब मेरे पास ये केस आया, मैं उसको हल करने के लिए तैयार हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ उनके लिए। लेकिन जब बच्चे खुद कह देंगे कि हमने आज़ादी के साथ खुद इस्लाम कबूल कर लिया, तो मैं उनका क्या करूँ? क्योंकि मेरी भी खुदा ने एक ड्यूटी लगाई है कि जो हमारे मसीह लीडर्स हैं उनके साथ रब्ता रखूँ और जिस तरह के केसेस हैं आगे गवर्नमेंट तक पहुँचाऊँ। केस आगे मैंने पहुँचाया, लेकिन क्या करेंगे जब आप के बच्चे कहेंगे जी हमने खुशी के साथ खुद अपनी मर्जी से कबूल कर लिया, क्यों आप वहाँ छोड़ते हैं उनके घरों में? इसलिए वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रखें। कल को ना कहना कि जी हमारी तो इसमें गलती नहीं थी, हमारे साथ तासब किया गया। तासब कोई नहीं होता, हमारी अपनी गलतियाँ शुरू में हम ख्याल नहीं रखते, हम कहते हैं ओ खैर जी ठीक हो जाएंगे जी। तो जब बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, एंड हो जाता है, फिर हमें कौमी सतह पर शर्मिंदगी भी होती है। हम उनके लिए एहतजाज करते हैं, हम उनके लिए मुकदमे करते हैं, हम उनके लिए आगे सड़कों पे चले जाते हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं हमने तो अपनी मर्जी से किया, हमने वालिदैन के पास जाना नहीं। तो इसलिए मैं वालिदैन से ये कहना चाहता हूँ, आप सब यहाँ पे बैठे हैं, प्लीज़ बराए मेहरबानी अपना अपने बच्चों का ख्याल रखें। कराची से हमारे एक मेहमान आए बैठे हुए हैं, भाई इम्तियाज़ के भाई हैं। सर ज़रा खड़े हो, हम आपको वेलकम करना चाहते हैं। जो लोग कराची से आते हैं ना उनकी बड़ी इज्जत किया करें, तालियां बजाएं उनकी। सर एक शमा आज आपने रोशन करनी है, क्योंकि आज तीसरी शमा, एक आप है एक बाजी है, ठीक है? सुशील आपने रहनुमाई करनी है। कलाम से पहले मैं चाहूँगा कि ये कैंडल्स रोशन की जाएं। भाई आपने तालियां क्यों बजाई ये तो बताएं, क्यों बजाएंगे? मैंने कहा था भाई जो कराची से आता है तो उनकी इज्जत किया करें, इसलिए कि मेरे ससुराल है कराची। आए बाजी, पहले आप आए, कैंडल रोशन करें। सुशील ये खुशी की कैंडल है, कोई बात नहीं, आ जाए। जवान है अभी, आप दुबई से होके आई हैं, वेलकम करते हैं। माचिस है बेटा, आप जला के दे दें, क्योंकि उन्होंने ग्लव्स पहने, ग्लव्स नहीं उतारने की आप। इतनी एहतियात करते हैं ये लोग जो 4 दिन बाहर रह के आते हैं ना, पूछने उनसे कहा वहाँ एहतियात करनी पड़ती है, कानून की वहाँ पे ताबेदारी करनी पड़ती है, हम लोग नहीं करते। भाई जी आप आए। आगे सर सुशील भाई को बेशक ठीक है। एक और कराची से मेहमान है, साहिब की अम्मी इधर बैठी हुई है, हमारी बुजुर्ग है, कहाँ बैठी हैं? आ जाए आप। चलो आज तो भाई कराची वाले छाए हुए, क्या बात है। जब भी आती हैं कराची से, यहाँ इनका बेटा जहीर डायसिस में हमारा खनांची है, जब भी आती हैं चर्च सेंट जॉन चर्च, ये इस चर्च के रेगुलर मेंबर है। पहली बात है माँ जी क्या कर बेटा, जला के दो। कोई बात नहीं, दूसरी ले लो। कैंडल के साथ जला लें।
फूक मार दो। चल जी चल। सुलेमान जी अब आप हाथ लगा दे इसको तो मैं इधर रख देता आज मैंने बड़ा टाइम ले लिया ना, अगले बार पर आपकी वॉइस सुनूंगा। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं तीसरे इतवार के लिए। ये आमद का तीसरा इतवार है जिसमें हम आज दाखिल हुए हैं। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनें। आज का पहला लफ्ज़ खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सिय्योन के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर करूं कि उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का खिलहत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल ज़ाहिर हो। तब वो पुराने उजाड़ मकानों को तामीर करेंगे और कदीम वैरानियों को फिर बना करेंगे और उन उजड़े शहरों की मुरम्मत करेंगे जो पुश्त दर पुश्त उजाड़ पड़े थे। परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारे गल्लों को चुराएंगे और बेगानों के बेटे तुम्हारे हल चलाने वाले और पाकिस्तानों में कलाम करने वाले होंगे। फिर तुम खुदावंद के कायम कहलाओगे, वो तुमको हमारे खुदा के खादम कहेंगे। तुम कौमों का माल खाओगे और तुम उनकी शौकत पर फख्र करोगे। तुम्हारी खजालत का इब्स दो चंद मिलेगा, वो अपनी रुसवाई के बदले अपने हिस्सा से खुश होंगे। बस वो अपने मुल्क में दो चंद के मालिक होंगे और उनको अब्दी शादमानी होगी, क्योंकि मैं खुदावंद इंसाफ को अजीज़ रखता हूँ और गारत गरी और जुल्म से नफ़रत करता हूँ। सो मैं सच्चाई से उनके कामों का अजर दूंगा और उनके साथ अब्दी अहद बांधूंगा। उनकी नस्ल कौमों के दरमियान नामवर होगी और उनकी औलाद लोगों के दरमियान। वो सब जो उनको देखेंगे इकरार करेंगे कि ये वो नस्ल है जिसे खुदावंद ने बरकत बख्शी है। मैं खुदावंद से बहुत शादमान होऊंगा। मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए। उसने रास्तबाजी के खिलहत से मुझे मुलब्बस किया। जैसे दुल्हा सेहरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपना श्रृंगार करती है, क्योंकि जिस तरह ज़मीन अपने नबातात को पैदा करती है और जिस तरह बाग उन चीज़ों को जो उसमें बोई गई हैं उगाता है, उसी तरह खुदामद खुदा सदाकत और सिताइश को तमाम कौमों के सामने ज़हूर में लाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। करेगा कलाम ते अपने बंदियां नाल
पाक दिलों का नाम तमाम। आए हम सब खड़े और भाई के साथ मिलकर पहली 3 आयत 8वीं 9वीं और 10वीं। पहला बाब 19वीं आयत से 28वीं आयत तक मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान। इधर आके पढ़े बेटा। इधर बेटा माइक दिया। शाबाश। ओ माइक आ गया। और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा कि तू कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दे। तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा है, बयाबान में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ, क्या तुम खुदावन की राह को सीधा करो, कि तुम खुदावन की राह को सीधा करो। ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब में कहा उनसे कहना कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ये बातें यरदन के पार बैत अन्य में वाक़या हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बढ़ता था।
आमीन। शायरबानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 8। एक खुदा का कलीमत पाक जो आसमान और ज़मीन और ज़मीन की हर एक चीज़ों का खालिक है। सब बोले और एक नाम यीशु मसीह हकीकी खुदा से हकीकी खुदा मस्त आपका एक ही जगह है इसके वसीले से हमारे लिए और हमारे जनाब के वास्ते आसमान पर से बुलाया और जिसकी वजह से हमारी मरीज से इंसान बना हमारे लिए मुस्लिम भी हुआ उसे बताया और हुआ तीसरे बावजूद उठा और आसमान का चढ़ गया बाहर किधर बैठा वो जलाल के साथ के दिल मिलाने वाला है उसकी सल्तनत खत्म न होगी और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद बख्शने वाला है वो बाप और बेटे के साथ है उसकी बाप और बेटे के साथ वो नबी की ज़बान बोला मैं एक बात आम मुस्लिम की पर ईमान रखता हूँ मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए इकरार करता हूँ और वो दुख क्या आसमानी बाप इस वक्त हम सब तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हैं तो अपने पाकों की रहनुमाई हम सबको अता फरमा ताकि आज का कलाम हम सबके लिए बरकत खुशी राहत तसल्ली इत्मीनान का सबब ठहरे ताकि हम आने वाले दिनों में अपने आप को तेरी आमद के लिए तैयार कर सकें। अपने खादम के मुँह में अपना कलाम दे खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का खालिक होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको खुदा के घर में वेलकम करता हूँ। आप लोग आज की इस बाबरकत दिन और फिर खुदा के घर में आए ताकि आप मिलकर खुदा की ताज़ीम कर सकें और खुदा का शुक्र अदा कर सकें। आज के ये दोनों हवाले आज के दिन के लिए मखसूस हैं। जहाँ कहीं भी एपिस्कोपल सिस्टम है ये हवाले पूरी दुनिया में पढ़े जा रहे हैं। इसलिए मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पुराने अहदनामे का हवाला जरूर निकालें। 61 चैप्टर 61 बाब 61 यशायाह नबी का सहीफा। मैंने लास्ट में अपनी खिदमत में अर्ज़ किया कि यशायाह नबी का सहीफा एक मुकम्मल बाइबल है। 66 चैप्टर है। इसमें माजी हाल और मुस्तक़बिल पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की बातें लिखी हुई हैं। बहुत सारी जो पेशन हुई हैं वो पूरी हो चुकी हैं, बहुत सारी हो रही हैं। इसलिए हम खुदा के इस खादिम के लिए जिसे खुदा ने चुना कि वो इस बड़ी खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाए और लोगों ने इस खुशखबरी को सुना। आज भी हम सब अपने कान खोल के रखते हैं कि हमारे कानों में कोई खुशखबरी आए, अच्छी खबर आए। बुरी खबर सुनने के लिए बहर आप तैयार नहीं है। अच्छी खबर अब तो बहुत कम है, शुक्र है। जब लाइट चली जाती थी, लोड शेडिंग होती थी, तो जब लाइट आती थी ना तो पूरे मोहल्ले की आवाज आती थी, आ गई, क्या आ गई, क्या खुशखबरी थी इसमें। लाइट आ गई है, रोशनी आ गई है, और सबसे बड़ी रोशनी जो मेरे आ रही है और आपके लिए है वो खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नूर, मैं लाइट। और ऐसे नहीं मिल गई ये लाइट, ऐसे नहीं मिली हमें ये रोशनी। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ। गाते हम इन दिनों में, कैरल्स की तैयारी करें, क्रिसमस के गीत गाया करें। लाइट कैसे मिल गई? लव, प्यार, मोहब्बत खुदा का कि उसने अपने बेटे को भेज दिया ताकि तारीकी खत्म हो जाए। तारीकी रोशनी के वसीले से खत्म होती है। लाइट, लव और लाइफ, ठीक है, जिंदगी। इसलिए आया कि लोग कौन है?
ادھر روڈوں پہ بڑی نعرے لگتے ہیں کون آیا نا، لیکن آپ یہ نعرہ لگا کریں کہ مجھے اور آپ کو زندگی دینے کے لیے یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا تاکہ وہ مجھے اور آپ کو زندگی دے اور کثرت کی زندگی دے۔ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس۔ اب یہ تین باتیں آپ نے یاد رکھیں۔ لائٹ، روشنی، یہ روشنی اس لیے چمک رہی ہے، یہ ساری چیزوں کا مقصد ہے، اس کے پیچھے ہسٹری ہے۔ کاش میری اور آپ کی زندگی میں روشنی آ جائے۔ جس گھر میں تعلیم نہیں نہ ہوتی وہاں روشنی نہیں ہوتی، تعلیم روشنی ہے۔ جب کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے کوئی چیز نظر نہیں آتی، روشنی آ جاتی ہے، بلب جل جاتا ہے، کمرے کی ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، ترتیب سے پڑی ہوئی ہیں یا بے ترتیبی۔ لائٹ، لو اور لائٹ، روشنی، محبت، پیار، یہ محبت اور پیار بانٹنے کے دن ہے تاکہ مجھے اور آپ کو زندگی ملے، ابدی زندگی، لاسانی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ دنیا اور دوسرے مذاہب بہت سارے جتن کرتے ہیں، تگودو کرتے ہیں زندگی کے لیے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے آسان۔ ابھی جو حوالہ پڑھا ہے اس بچی نے یہاں پہ کھڑے ہو کے جہاں خدا یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا سے پوچھا گیا اور وہاں پہ لکھا اس نے اقرار کیا، اس نے اقرار کیا اور کس چیز کا انکار کر دیا؟ اقرار اس نے یہ کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں۔ انکار کس چیز کا کیا؟ کہ یسوع مسیح میں نہیں ہوں، وہ نبی میں نہیں ہوں، ایلیا میں نہیں ہوں۔ مجھے اور آپ کو انکار کرنا ہے ایسے کاموں سے، غلط کاموں سے جو میری اور آپ کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ انکار کر دیا کرے۔ مجھے میرے گھر والے کہتے ہیں کبھی تو کسی کو انکار کر دیا کرے، ہاں ہی کرتے ہیں، چلے اپنے اپنے مزاج کی بات ہے، لیکن اقرار کریں، اظہار بھی کر دیں، لیکن جہاں انکار ہے وہاں کریں۔ آج اور اس مہینے کی یہ آخری عید، اس سال کی آخری عید، کوئی بتا سکتا ہے کتنی عیدیں ہماری؟ 4؟ شاباش، اور کیوں بولے؟ پہلی عید جنوری سے ہم شروع کریں گے، عید ظہور، شاباش، ایسے باجی کے لیے تعلیم میں جا رہے ہیں، یاد رکھیں یہ ہم عید ظہور 6 جنوری کو مناتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی یہ روشنی جو تھی یہ صرف مسیحیوں پہ نہیں آئی تھی، سب پہ روشنی، سب پہ آئی۔ عید ظہور غیر قوموں کے لیے نجات۔ دوسری بڑی عید قیامت اور مسیح، ایسٹر۔ تیسری بڑی عید صعود، خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ چوتھی بڑی عید پینتیکوست، کلیسیا کا جنم دن، برتھ ڈے منایا کریں۔ پانچویں عید تثلیث۔ اب یہ چیز خدا نے خود کیا دی؟ آسمان پھٹ گیا، آواز آ گئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کاش خدا مجھ سے اور آپ سے خوش ہو، کاش میں اور آپ اس کے فرزند ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ عید تثلیث ہے، تثلیث الہی، عقل انسانی سے گو باہر۔ اور سب سے بڑی عید جس کی تیاری میں آپ کر رہے ہیں، چھٹی عید کون سی ہے؟ ہارون بول بھائی، چھٹی عید کون سی ہے؟ اس سال کی آخری عید کرسمس، عید ولادت اور مسیح، خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، اور اس کی خوشخبری کتنے 100 سال پہلے یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے یشعیاء نبی دیتا ہے۔ کس باب میں؟ 61 میں۔ پھر سننے کیا لکھا ہے یہاں پہ، جو بھی حوالہ پڑھا گیا بڑی سادگی کے ساتھ، خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے وسع کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجا شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کو۔ آپ کو پتہ ہے عید کی جب دن آتے ہیں تو کچھ قیدیوں کی سزا کم ہو جاتی ہے، پتہ کسی کو؟
टेलीविजन में आता रहता है ना, ये यहीं से लिया गया। कैदियों की सजा कम हो जाती है, कैदियों को रिहाई की खबर, और असीर जो लोग हैं उनको आज़ादी की खुशखबरी दूं, ऐलान करूं ताकि खुदा उनके सारे मकबूल और अपने खुदा के तकाम फिरोज का इश्तिहार दूं, सब गमगीनों को दिलासा दूं। जो लोग गमगीन थे, परेशान थे, मायूस थे, उनके लिए ये खुशखबरी, ये लाइट, ये रोशनी नमूदार हुई। ये रोशनियां इसलिए हम कहते हैं ना, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, जो सयून के गमज़दा लोग थे, जो परेशान बैठे थे, मायूस बैठे थे, सयून के गमज़दों के लिए मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले अब राख क्या होती है? जब कोई शख्स मायूस, परेशान, गमगीन होता है, अपने सर पे राख डाल देता है, परेशान होता है, वो गमगीन होता है। लेकिन खुदा ने कहा, मैं अपने बेटे के वसीले से तुम्हारे सर पे जो खाक है इसको उतार दूंगा, और खाक के बदले सेहरा का पहन देना। वो लड़के बैठे थे, इनकी शादी की पुकारें आ रही हैं, ओ कोने में एक लड़का बैठा, शाबाश आशिर, सेहरा बांधा करें। मैं एक शादी पे गया, मैं मुश्किल, हम दोनों थे, वो लड़का कहता मैंने सेहरा नहीं बांधना। सारे घर वाले परेशान थे। मैंने फिर उसको जाकर कहा, भाई मेरे कलाम की बात है, आजकल तालीमें इतनी हो गई हमारे इर्द गिर्द, गलत तालीमें हैं, और जिनकी हम बड़ी तरीके से पैरवी करते हैं, उनके पीछे जाते हैं। वो कहते हैं जी सेहरा भी नहीं बांधना, जी मेहंदी भी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई? तो बाइबल की बात है, पढ़ते रहो, गौर से सुन लें। मैं स्वयं के लोगों को, उन लोगों को जो गमज़दा है, परेशान है, मायूस है, नाउमीद है, राख के बदले उनको सेहरा दूंगा, खुशी मनाएंगे। मातम की जगह खुशी का रोगन, और उदासी के बदले सताइश का खिल्लत, रोगन, तेल में नहीं कर रहे हैं ना, बाइबल की बात नहीं। क्यों गलत तरीकों के पीछे आप जाते हैं जो मना करते हैं, ज़ेवर भी ना पहना करें, मेहंदी भी ना किया करें, सेहरा भी ना लगाया करें। क्यों ना करें भाई? खुशी है, खुशी के वक्त खुशी करो। हर काम का खुदा ने वक्त मुकर्रर कर दिया है, अब खुशियों का देना ही है। मैं उन खानदानों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिन खानदानों में परेशानियां भी आ जाती हैं, लेकिन वो कहते हैं जी नहीं मनाए खुशी, अब क्या हो सकता है। मैं उन्हें शाबाश देता हूँ, क्योंकि मुझे रात को खुदा का शुक्र अदा करना है। रात के बदले सेहरा, मातम की जगह रोगन, तेल, उदासी की जगह सताइश, हम्द व सदा का लिबास, ताकि वो सदाकत के दरख्त खुदा के लगाए हुए कराएं, क्योंकि उसका जलाल जाहिर करें। हम खुदावंद के लोग हैं, फिर गवाही तो दें, लोगों को तसल्ली दें, और खुद मायूस हों, नाउमीद हों। हमें ये तसल्ली मिली, खुदा ने अपने बेटे के वसीले से मुझे और आपको खुशखबरी दी। चौथी आयत खूबसूरत आयत है, तब वो पुराने उजाड़ मकानों को तामीर करेंगे, क्योंकि घर आबाद नहीं थे, घर वीरान थे, हैकल भी टूटी फूटी थी, फसील टूटी हुई थी, फाटक जल गए थे। अब मैं अपने लोगों को जो मुझ पर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके घर जो उजड़े हुए हैं नए तामीर होंगे। जब नए घर बनते हैं हम बड़े खुश होते हैं, जब अच्छी खूबसूरत तामीर होती है। कहां से मसाइल आते हैं? खुदा ने देता है। कदीम वीरानों को फिर बनाएंगे, जो वीरान जगह पड़ी है, और उजड़े हुए शहरों की मरम्मत करेंगे जो पुष्ट दर पुष्ट उजाड़ पड़े थे। रौनक आ गई, वहां पे उजड़ी चीजें बहाल हो गई। कोरोना की वजह से मुश्किलात तो आई है ना, लेकिन बदहाली के बाद खुशहाली है। आज दुनिया में जो रूहानी खुशहाली है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह के वसीले से है। इसलिए खुदा का बंदा यशायाह नबी दलेरी के साथ इस खुशखबरी को देता है, परदेसी आ खड़े होंगे,
جو لوگ اپنے گھر چھوڑ کے بھاگے تھے اسیری کی وجہ سے، اور اسیری قید یہ گناہ کے سبب سے ہوتی ہے، نافرمانی کے سبب سے ہوتی ہے۔ دنیا میں جب نافرمانی زیادہ ہوگی، بد کرداری زیادہ ہوگی، خون ریزی ہوگی، دہشت گردی ہوگی، وحشتناک خبریں آپ کو ملیں گی، عزت آبرو کسی کی نہیں ہوگی، خود غرضی ہوگی، تو پھر شہر اجاڑ ہوں گے، پھر بدحالی ہوگی، خدا کا غضب بڑکے گا، مشکلات ہوگی، پریشانیاں ہوگی، کھانے پینے کی کمی ہوگی۔ لیکن خدا ایسے لوگوں کو پھر ان کی تسلی کے لیے خدا کے کلام میں لکھا اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ پردیسی آ کھڑے ہوں گے، تمہارے گھروں کو چلائیں گے، بیگانوں کے بیٹے تمہارے ہل چلانے والے ہوں گے، پاکستانوں میں کام کرنے والے ہوں گے۔ آپ کے تو پاکستان بھی جاڑتے دوبارہ سے بحال ہوں گے، پر تم خدا کے کاہن کہلاؤ گے۔ بہت بڑا عہدہ ہے یہ کاہن کا۔ خدا کرے کہ خدا ہم سب کو اس عہدے کی لاج رکھنے کے لیے عقل، دانش اور فہم عطا فرمائے۔ تم قوموں کا مال کھاؤ گے اور تم ان کی شان و شوکت پر فخر کرو گے۔ میرے ایک بھائی کہا کرتے تھے، میں نے پہلی دفعہ یہ فکر آپ سے سنا، اب کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم، کمائی کی دنیا کیا مطلب ہے اس کا؟ مشکل کام، سخت کام کوئی اور کرے گا، اور میں اپنی عقل سے، اپنی محنت سے، اپنے آرٹ سے، اپنے فن سے انہیں کا دیا ہوا پیسہ دوں گا۔ کیا بات ہے؟ تم قوموں کا مال کھاؤ، تم ان کی شان و شوکت پر فخر کرو گے۔ آج بھی اسرائیل ہم سب کی محنت کا جو پھل ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں۔ فیکٹریاں ان کی ہیں، تجارت ان کی ہے، ٹیکنالوجی ان کی ہے، اور جہاز بھی ان کے ہیں، ساری چیزوں پر خدا نے فوقیت دے رکھی ہے۔ وہ خدا کی مرضی نہ کہو، جو مرضی میں آ رہا آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ دعا میں کوئی مل کے سب دم سلامت رہے شہر یروشلم تو نجات کی جگہ ہے نا، اس لیے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے تمہاری خجالت کا دو چند ملے گا۔ وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصے سے خوش ہوں گے، پر وہ اپنے ملک میں دو چند کے مالک ہوں گے اور ان کی ابدی شادمانی ہوگی۔ یہ شادمانی ابدی ہے جو خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملی ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے تو فریسی لوگ یوحنا کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں بتا تو صحیح تو ہے کون؟ نبی تو ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ آنے والا۔ آپ اس کی بات کرتے ہیں؟ میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یوحنا، جس کے وسیلے سے لوگوں نے توبہ کی، اور آج جو ہمارے پشتون ہے وہ کہتا ہے میرے وسیلے سے یہ ہوا ہے۔ میں جو خدا کو کہتا ہوں وہی ہو جاتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو معاف کرے۔ خدا میرا اور آپ کا مالک خالق ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو میں کرتا ہوں وہ نہیں ہے۔ بائبل کی بات ہے، خدا میں ابدی شادمانی بخش دیتا ہے، کیونکہ میں خدا انصاف کو عزیز رکھتا ہوں، غلط گری اور ظلم سے نفرت کرتا ہوں۔ اسی لیے ملکوں میں غضب ہوتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں کم ظلم ہے کہ آپ کسی کی بچی کو اٹھا لیں، اور ہو بھی 12-13 سال کی بچی، اور زبردستی اس کے ساتھ نکاح بھی پڑھا لیں اور کہے کہ نہیں اس نے تو اپنا مذہب ہی تبدیل کر لیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور میں نے کئی دفعہ پریس کانفرنس میں ادھر ادھر بڑی دلیری کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ جہاں جس ملک میں اقلیت، مائنارٹی کو قتل کرنا حلال ہوگا، اس ملک میں جو میجارٹی ہے، جو اکثریت ہے، اس کا جینا حرام ہوگا۔ سننے دوبارہ فکرہ سادہ بات ہے، کہیں کو سمجھ آتی کہیں کو نہیں آتی جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ جہاں جس ملک میں، خواہ وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، امریکہ ہو، جو بھی ملک ہے، اگر وہاں جو کم لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، جو مائنورٹی میں ہیں، جو اقلیت میں ہیں، اگر ان کے ساتھ ظلم ہوگا، اگر ان کو مارنا کوٹنا اور ان کے ساتھ ظلم کرنا صحیح ہے، حلال ہے،
तो फिर जो अक्सरियत होती है ना वहाँ की रहने वाले, जिनके पास अख्तियार होता है, उनका जीना भी खुदा हराम कर देता है। उनके लिए मुश्किलात होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, दुख होता है। आज दुखी है इस दुनिया में, हमारे अपने मुल्क में है, क्योंकि यहाँ जुल्म बहुत है, खुदा को जुल्म से नफरत है। तो मैं सच्चाई से इनके कामों का अजर दूंगा, अच्छे कामों का अजर अच्छा देख जल्द आने वाला, हर एक आंख से देखेगी, जिन्होंने इसे छेदा वो भी इसे देखेंगे, और अच्छे कामों का वो अजर अच्छे देगा, बुरे कामों का अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, अव्वल और आखिर मैं हूँ, इब्तिदा इंतहा हूँ मैं। तो फिर मेरा और आपका ईमान भरोसा तो किस पर है? उसी पर। उनके साथ अबदी अहद बांधूंगा, उनकी नस्ल कौमों के दरमियान नामवर होगी और उसकी औलाद लोगों के दरमियान। दोबारा इस आयत को पढ़ लें। उनकी नस्ल जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, मेरी कौम के लोग, कौमों के दरमियान, लोगों के सामने, दूसरे लोगों के सामने वो नामवर होगी। हम जुगल जुमाते नहीं होते, कहते जी फलान नामवर खादम है जी, अजीम खादम है, काम तो किया नहीं होता। तो आखिर हो कोई अजीम इतनी जल्दी नहीं होता जब तक कोई अजमत खुदा की तरफ से ना मिले। नामवर होंगे कौन लोग? मेरी कौम के लोग, उनकी नस्ल भी और उनकी औलाद लोगों के दरमियान, उनकी इज्जत होगी, एहतराम होगा। वो सब जो उनको देखेंगे इकरार करेंगे कि वो नस्ल है जिसे खुदावंद ने बरकत दी है। कौन सी नस्ल? बोले बोले जो खुदा के साथ चलता है, वो खा मैं हूं या आप, कोई भी हो। यहूदी की बात नहीं है, दोबारा पढ़ने लगूंगा शायद को, ये मेरे लिए और आपके लिए है। ये सादगी के साथ मैं इसको बयान कर रहा हूं। जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनकी नस्ल भी नामवर होगी। लोग उन्हें देखते ही उनके किरदार के सबब से, उनकी गुफ्तगू के सबब से जानेंगे कि ये किसी अच्छी कौम के लोग हैं, अच्छे घराने के लोग हैं। जो कोई करके बुला देगा, जो तमीज़ी के साथ बात नहीं करेगा, उसका नाम होगा नहीं होगा। अपनी बात को समझाएं, अपने बच्चों की सही तरीके से नशोमा करें, उनकी सही तरीके से रहनुमाई करें। वो सब जो उनको देखेंगे इकरार करेंगे कि ये वो नस्ल है जिसे खुदावंद ने बरकत दी है। मेरे किरदार के सबब से, मेरी गुफ्तगू के सबब से, मेरे चाल चलन के सबब से लोग जाने कि मैं उसी हूँ। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ, किरदार ठीक करें, गुफ्तगू ठीक करें, चाल चलन ठीक करें, जबान को ठीक रखें। जो शीरी जबान होती है, मीठी जबान, हड्डी को भी तोड़ देती है, नरम जबान होती है। हड्डी तो बड़ी टूटती नहीं है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है वो नस्ल है जिसे मैंने बरकत दी है। बरकतों के लिए खुदा ने मुझे आपको बुलाया है। 10वीं आयत, मैं खुदावंद से बहुत शादमान हूंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए हैं। यीशु के बारे में लिखा गया ना, उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से ये निजात के कपड़े खुदा मुझे और आपको पहना देता है, उससे मुलव्वस कर देता है, रास्तबाजी के कदर से मुलव्वस कर देता है। कैसे? जैसे दूल्हा सेहरे से अपने आप को आरास्ता करता है। दूसरे से फर्क लगता है जब सेहरा पहना होता है, सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। जैसे दूल्हा सेहरे से अपने आप को आरास्ता करता है, खूबसूरत बना लेता है, उसमें अट्रैक्शन होती है उस वक्त, वेट भी होता है उस वक्त, उसी तरह दुल्हन अपने जेवरों से अपना संहार करती है। आए मैं और आप इसके लिए हम तैयारी करते हैं, दुल्हने भी तैयारी करती है, महीना महीना पहले दूल्हा भी करता है। आए मैं और आप उस दूल्हे के लिए जो मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है, भाई तैयारी कर रहे हैं। दूसरे कामों के लिए बड़ी तैयारी मारी होती है, इस काम के लिए तैयारी बिल्कुल कोई नहीं है। आ रहा उसमें भी बड़ी ऐसी है जैसे कि चोर आता है ना, उस तरह से पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जो तैयार होंगे वही मेरे पड़ जाएंगे, और जो तैयार नहीं होंगे वो नहीं जा सकते। रूहानी मेकअप भी किए कर लिया करे भाई, ये कलाम की बात है। जिस तरह दुल्हन सेहरे से अपने आप को रास्ता करता है, दुल्हन अपने जेवरात से अपना संहार करती है, इसी तरह मेरा और आपका खुदा
अपने बेटे हमारे मिजाज जिंदा खुदा यीशु मसीह के वसीले से चाहता है कि कलीसिया उसके लिए तैयार हो, ताकि वो आए और अपने दिल अपने साथ। देखो वो बादलों पर आने वाला है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। वो जब जल्द आने वाला है तो मेरी और आपकी तैयारी क्या है? ये क्रिसमस की तैयारी जो है ना, पैदाइश तो हो चुकी, अब उसकी आमद की तैयारी के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। आमद का अगला इतवार चौथा इतवार होगा, क्योंकि जिस तरह जमीन अपने नबातात को पैदा करती है, जिस तरह बाग उन चीजों को जिसमें बोई जाती है उगाता है, उसी तरह खुदा सदाकत और सताइश को तमाम कौमों के सामने ज़हूर में लाएगा। सताइश कैरोल, ये कैरोल है, झूम के गाना, खुश होके गाना, खुशी से गाना, तसल्ली से गाना, उसकी सताइश करना, ताज़ीम करना, दिल से उम्दा तरीके से, सुर में बेसुरे होके नहीं गाना, ये सताइश है उसकी, ये खुदा की कलाम की बात है। उसी तरह खुदा सदाकत और सताइश को तुम्हारी कौमों के सामने ज़हूर में लाएगा, ताकि लोग जाने कि इनका क्रिसमस है। अगले हिस्से को मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ अगले तो आके लिए, इससे ताकि आप थक ना जाए, क्योंकि रूहानी खुराक में ना आप थोड़ी सी भी खा ले तो थक जाता है, जिस्मानी खुराक 2 प्लेटें भी खा ले मेरी तसल्ली नहीं होती, जिंदगी नहीं होती ना। इस खुराक से मैं खुदा का खादिम होते हुए आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपकी औलाद की इज्जत हो, लोग जाने कि ये वो कौम है, उन लोगों के बच्चे हैं जिन्हें खुदा ने बरकत दी है, तो आए फिर अपने आप को, अपने किरदार को ठीक करें। हमारे लीडरों का भी किरदार आजकल ठीक नहीं है, मैं भी इसमें शामिल हूं। हमारे लीडरों का भी किरदार ठीक नहीं है, हमारी औलाद का भी किरदार ठीक नहीं है, वालिदैन का भी ठीक नहीं है। मतलब क्या है कि जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको दयानतदारी के साथ नहीं करता, जो मेरे सुपुर्द काम है मैं उसको नहीं करता। हमारे अंदर से कड़वाहट ही खत्म नहीं होती, तंग नजरी इतनी ज्यादा, हसद इतना ज्यादा, ये तरक्की करेंगे, ये क्यों हुआ? इनके बच्चे इसी जगह चले गए, क्यों है भाई? उन्हें देख भी रहे कि क्यों ऐसा हुआ, खुदा ने उन पर क्यों रहम किया? क्योंकि उनका किरदार ठीक है। मैं इकरार करता हूं कि हमारा किरदार, हमारी गुफ्तगू, हमारा चाल चलन ठीक नहीं है। आए इस साल के क्रिसमस के दिनों में, आमद के तीसरे इतवार, अपने किरदार को दुरुस्त कर लें, ताकि मैं बाहर जाऊं, आप बाहर जाएं, हमारे बच्चे बाहर निकले, छोटे बच्चे जाएंगे बाहर तो लोग कहें कि ये मसीह लोग, ज़बान उनकी ऐसी हो, किरदार उनका ऐसा हो। रोते फिरे ना हम सड़कों पे ना एहतजाज करते रहे, हमारे बच्चों के साथ जबरदस्ती उन्होंने इस तरह से कर ली, तरबियत सही करे। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ मांगे, शुक्रगुजारी करें, कोई भी दुआ करे चंद अल्फाज इस कलाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। सारा क्रेडिट जिस दासी तेरे नाम को मिले, माँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।
बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम अपनी शुक्रगुजारियाँ, दरखास्तें, मनाजातें तेरे हुजूर गुजरान सकें। अपना हाथ बढ़ा इस हदिये की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे, इनके वसाइल में वसअत दे, इनकी रोटी पानी पर बरकत डाल, इनके घरों में किसी चीज़ की कमी ना आने पाए। जिस घरों में शादियाँ हैं हम उनके लिए दुआएं ख्याल करते हैं और मिन्नत करता है खुदा ने ढेरों खुश ना दे, उनके वसाइल में वसअत दे, उनके घरों में किसी चीज़ की कमी ना आने पाए। हम सब इस वक्त तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दी ताकि हम अपने हदिये, नजराने, शुक्रगुजारी तेरे हुजूर रखें। ऐ बाप, आज जिन सारी हमें की फिरौती के साथ तेरे आगे रखते हैं, अपना हाथ बढ़ा इनकी तकदीस कर ताकि तेरे जलाल में इस्तेमाल हो, देने वालों को बरकत दे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। ईश्वर अच्छे सरदार का है, जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए सो अपने रुल्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैक की तकदीस कर ताकि हमारे तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु में बाप के पास हम सबकी रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिल आदमी बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब और मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक रज़ी खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च की सारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ फ्राइबर्ग के लिए, बिशप ऑफ फ्राइबर्ग के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तमाम अदालतों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, आला हुकूमतों के लिए, जिम्मेदार लोगों के लिए, हाजिर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस चर्च की एक चीज के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों आसमानी गुलों के साथ मिलकर सब बोले कद्दूस कद्दूस खुदा रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूल है। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आसमानी बाप, कि जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए शरीर पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र शाह कुल जहान के गुनाहों की पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़्र और मौत से दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमार लोगों पर रहम कर, कमजोर लोगों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, इस शहर पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, उन लोगों पर रहम कर जो परेशानी की हालत में, जो बेघर हैं, जो मायूस हैं, उन सब पर रहम कर। हमारी खताओं को मुआफ कर, पूरी कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीला से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिरना हूं तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बदेनों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। Amen.
जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे दोस्त की आज हमें दे और हमारे किस्सों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने किस्सों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आसमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक भी रहती है। आए हम खुदा के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर करें और कहें, ऐ नहीं खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़े रामतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते चुने, लेकिन तू हुक्म है हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदा मुझे बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह का जिस्म में उसके नहाए बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की जाएं और हम उसमें और वो हमें हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे की तरफ बात करके एक दूसरे के लिए खुदा से बरकत चाहें और कहें कि खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको इत्मीनान अता फरमाए। मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग आज अपने आप को तैयार करके लाए हैं, बराए मेहरबानी बड़ी तरतीब के साथ इस साइड के लोग इस तरफ से आएंगे, इस साइड के लोग इस तरफ आएंगे और हम खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होकर रूहानी ताजगी पाएंगे।
जो लोग शायरबाजी में शरीक होना चाहते हैं, अभी मौका है। अगर आप यहाँ ना आ सकते हो, अपना हाथ दिखाएं ताकि हम आपकी खिदमत के लिए आपके पास आ सकें। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन उनके पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करें और कहें, कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून के रवाने खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की जिंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से भाई हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नजर गुजराते हैं, ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। फजल बख्श ताकत में जान के हम शक्ल न बने, बल्कि यकीन और जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं नेक मुकाबले कर से सीखें और इस जान में इसी तरह तारीफ और हमदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दस समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल वाहिद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल वाहिद हमारे खुदा की। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स की बरकत हम सब पर और हम सब के तमाम अजीज़ व कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, पैरामेडिकल के लोगों के साथ, तमाम बीमार लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए।